everyone. Today our topic of discussion is LCM, mean least common factor. So here the different algebraic expressions are given. In the same way we found the HCF, but here the one or two more steps are here that are included in LCM. In LCM what we are going to do, if two more, how many are the algebraic expression, there is no issue, but we'll have to factorize all the algebraic expression those are given in the question, and all these algebraic expression we will factorize. After making the factors, we will pick up the common factors from there, and then we'll pick up the uncommon factors from there, and then LCM is the product of common factors and uncommon factors. मीन एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास गिवन होते हैं हम उनको फैक्टराइज करते हैं, उनके फैक्टर्स बनाते हैं, और फैक्टर्स बनाने के बाद कॉमन फैक्टर्स पिक करते हैं, फिर अनकॉमन फैक्टर्स पिक करते हैं, और एलसीएम कैसे आता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा. Okay, here question number 4, two parts are given, part 1 and 2. The second part I am going to solve over here. The part 1 you will try yourself to solve. In the second part you can see here that 102xy square z. This is the first expression. We will factorize this. First of all we will factorize 102 here. This is 2 5 times, 2 1 times. Then 3 1 times, 2 is carried, 3 7 times, and 17 1 times. So here the factors of 102 x y square z. 102 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 2 into 3 into 17. Then x is 1 times. Y is how, y square, it means y is 2 times, and then there is z. After this we will make the factors of the second expressions. Factors of 85 x square y z. 85, the factors of 85 we will form here. 5 1 times 5, 3 carry, 5 7 times, and 17 1 times. So its factors are 5 and 17. 85 5 into 17. X square means x is 2 times, so we write here 2 times. Then y is 1 time, it has no power, and z also has no power, that we write 1 time. After that we will make the factors of the third expression, that is 187 xy z square. 187 के factors हम बनाएंगे. This can be factorized with the table of 11. 11 1 time, 7 is carried. 11 7 times 75, and 17 1 times. So its factors are 17 and 11. Just I will write over here. Factors are the last expression 187 xy z square. 187 के factors हमारे पास आ गए, 11 and 17. So here 11 into 17 x y z has a power 2. It means z will be written 2 times. z को हम 2 दफा लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है. अगर 3 होती तो हम इसको 3 टाइम्स लिख लेते. अब जी आपको मैंने क्या बताया कि हम क्या करेंगे, एलसीएम के मेन स्टेप्स आपने माइंड में रखने हैं. सबसे पहले आपने क्या करना है कि फैक्टर्स बनाने हैं. ठीक है, फैक्टर्स जैसे हमने अगर मेन स्टेप्स में आपको यहाँ पर लिख दूं तो सबसे पहले आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं. नेक्स्ट स्टेप में आपने जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो पिक करने हैं. इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, you will take the uncommon factors, and in the last step LCM किसके इक्वल होगा, common factors multiply uncommon factors. ये स्टेप्स आप
आप माइंड में रख लें, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए एलसीएम फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, देन हम क्या करेंगे, उसके कॉमन फैक्टर्स पिक करेंगे। जितने भी एक्सप्रेशन है उन सब में कॉमन है, चाहे 3 एक्सप्रेशन है, 4 एक्सप्रेशन है या 2 एक्सप्रेशन है। उसके बाद अनकॉमन फैक्टर्स पिक करेंगे और फिर उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा दैट इज द एलसीएम। ठीक है जी, अब हमने इसमें से क्या पिक करना है, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आप इन सर्कल कर लें। इसमें से सबसे पहले तो इसमें कॉमन है हमारे पास 17, ये देखिए फर्स्ट कॉमन फैक्टर इज 17। उसके बाद हमारे पास कॉमन है x, कॉमन वो है जो तीनों एक्सप्रेशन में सेम है, x। उसके बाद कॉमन है हमारे पास y, then common is z. Z is also present in all the 3 expressions, so z, these are the common factors 17, x, y and z. Then uncommon factors, अनकॉमन मीन कि कॉमन हमने इंसर्कल कर लिए, इसके अलावा जो बाकी फैक्टर्स रह गए हैं वो सारे क्या हैं, अनकॉमन है। जैसे फर्स्ट में 2 3 रह गया, 2 into 3, यहाँ पर क्या रह गया 5, यहाँ पर क्या रह गया सॉरी 11। ठीक है, अब फर्स्ट में वेरिएबल क्या रह गया था y, वो भी हम लिख लेंगे। सेकंड में क्या रह गया था y, then x, एंड थर्ड एक्सप्रेशन में हमारे पास कौन सा वेरिएबल यहाँ पर रह गया, दैट इज z। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अनकॉमन फैक्टर्स का आंसर क्या आएगा, 2 multiply 3 multiply 5 and multiply 11, 330। यहाँ पर मैंने 11 स्किप कर दिया है, सॉरी, ये वाला 11। ठीक है, उसके बाद हमारे पास y, what is left in the second expression x, and here what is left z। तो हमारे पास ये अनकॉमन फैक्टर्स में क्या आ गया, हम इन सबको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 multiply 3 multiply 5 multiply 11, तो हमारे पास ये आ गया 330। x y z को हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं, x y z। एलसीएम हमने कैसे फाइंड करना है, as I told you will follow the steps। एलसीएम कैसे आएगा, when we multiply the common factors, C for common, F for factors, multiply the uncommon factors। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आए हैं, 17 x y z, मल्टीप्लाई अनकॉमन क्या आया है 330 x y z। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 330 multiply by 17, that is 5610, x multiply by x, x squares, y multiply by y, y squares, z multiply by z, z squares। जब दो सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, और यहाँ पर इनकी कोई पावर नहीं है तो पावर विल बी 1, तो इसीलिए 1 पावर ऐड होके हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सो हियर द एलसीएम इज 5610, x squared, y squared and z squared. This was the part 2. Same like this we will solve its question number 5. Question number 5 has 4 parts here. We will solve any 2 parts here. It has 4 parts. The first part that is very simple. In that part that both expressions are the quadratic equation. और quadratic expression को आप कैसे solve करते हैं, you know very well. तो उन दोनों को सॉल्व करने के बाद उसी तरह से आप कॉमन अनकॉमन फैक्टर्स पिक करके एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ओके, द सेकंड पार्ट दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर यू, और उसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस गिवन हैं, दे आर सेपरेटेड बाय द कॉमास। ठीक है, आपको कॉमास नजर आ रहे हैं, हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है। हम तीनों एक्सप्रेशन के सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फैक्टर्स बनाने जा रही हूँ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4k। ठीक है, x स्क्वायर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर और
लास्ट हमारे पास है 4, वो हम ऐसे ही लिखेंगे। 4x की जगह हम कोई दो ऐसी टर्म्स लिखेंगे जिनको प्लस माइनस करने से +4 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने से भी +4 आए। ठीक है, तो हमारे पास वो कौन सी दो पॉसिबल टर्म्स हैं, +2x एंड +2x। जब हम +2 करेंगे तो दैट विल बी +4 एंड व्हेन वी विल मल्टीप्लाई +++2 टाइम्स 4 तो हमारे पास क्या आएगा, +4 आएगा। ठीक है, उसी तरह से हम इसके पेयर्स बनाएंगे, द फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स। ठीक है, इन दोनों में से हमारे पास x स्क्वायर और x द सेम विल टेक कॉमन, x रह गया, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 2। हियर द कॉमन विल बी 2 एंड 4, दे आर डिविजिबल बाय 2, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, इनसाइड रह जाएगा x + 2 2 टाइम्स 4, तो ये हमारे पास कॉमन क्या आ गया, x + 2, इसको हम कॉमन ले लेंगे, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, और ब्रैकेट के बाहर है x + 2, ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड फैक्टर। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस फर्स्ट algebraic expression. After that we are going for the second expression, that is x squared -4. X squared, you can see here, that is the square of x and 4 is the square of 2. आपने ऐसा फार्मूला पढ़ा हुआ है, a squared - b squared, यानी जब भी कोई दो टर्म्स हमारे पास हो और उनके बीच में माइनस का साइन हो और वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, a + b × a - b। तो a हमारे पास है x और b हमारे पास है 2, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे x + 2 and x - 2 as a + b × a - b। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के भी ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। उसके बाद हम आएंगे थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ, दैट इज 2x² + x - 6। यू कैन सी हियर कि इस एक्सप्रेशन में भी हमारे पास क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, देन वेरिएबल एंड देन कांस्टेंट टर्म, मींस ये भी हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम उसी तरह से सॉल्व करते हैं कि उसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, मिडिल वाली टर्म की जगह हम कोई दो ऐसी टर्म्स लिखते हैं जिनको प्लस माइनस करने से मिडिल वाली टर्म आए और जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 2 टाइम्स 12 आए। ठीक है, लेकिन उसमें हमें फर्स्ट टर्म भी ऐसे ही लिखनी होती है 2x² और लास्ट टर्म -6 भी हमने ऐसे ही लिखनी है। अब देखिए 6 2 टाइम्स क्या होता है, 12। हम 12 के कोई फैक्टर्स बनाएंगे, जैसे 12 1 टाइम्स, 2 की टेबल से 2 6 टाइम्स, 3 4 टाइम्स एंड 4 3 टाइम्स। तो इनमें से कोई भी एक पेयर हो सकता है जिसको प्लस माइनस करने से +1x आए, तो बाकी पेयर्स में से तो नहीं आ सकता, लेकिन 4 3 या 3 4 में से आ सकता है, क्योंकि इन्हीं को माइनस करें तो 1x आएगा। तो 4 - 3 अगर हम करें +4 - 3 तो हमारे पास +1x भी आ जाता है, और अगर हम +4 - 3 करें तो हमारे पास -12 आ जाता है मल्टीप्लाई करने से। तो इट मींस हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल फैक्टर होगा +4x - 3x। हमने यहाँ पर ये जो लास्ट वाला पेयर था इसको पिक किया। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो माइनस करने से हमारे पास आएगा +1x, यहाँ पर हमें +1x चाहिए, और मल्टीप्लाई करें इसको +- 4 3 टाइम्स 12 -12, तो देखें 6 2 टाइम्स 12 -12 हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए, इट मींस दिस इज द परफेक्ट पेयर हियर। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन द सेम वे हम इसके पेयर्स बनाएंगे, फर्स्ट टू टर्म्स के पेयर बनाएंगे। ठीक है, अगर हम यहीं पे बना लें तो दैट इज आल्सो ओके। अब देखिए फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास कॉमन क्या है, 2 एंड 4 में से 2 कॉमन है, x² और x में से x कॉमन है, तो सबसे पहले मैं 2x कॉमन लूंगी, यहाँ पर रह जाएगा x + 2 2 टाइम्स 4, x हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, -3x और 6, इन दोनों को बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय 3, तो 3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। स्टूडेंट्स सॉरी फॉर दिस के यहाँ पे थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी, दैट्स व्हाई आई वाज एक्सप्लेनिंग ओवर हियर, माय कैमरा वाज स्टॉप्ड, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग फ्रॉम हियर। द सेकंड एक्सप्रेशन मैं एक्सप्लेन कर रही थी, यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ था। अब देखें इन द नेक्स्ट वन, x + 2 x + 2 दे बोथ आर कॉमन हियर,
So they are same. So x plus 2 will take the common, and outside what is left? 2x minus 3. 2x minus 3. So these two are the factors of this third expression. Now we have the factors of all these expressions. After this, what we will do? We will pick up now the common factors from here. The common factors from all these x plus 2, x plus 2 and x plus 2. So we will write that in the common factor. Then uncommon factors, first वाले में क्या रह गया? x plus 2. Second में क्या रह गया? x minus 2. And in the third one, that is 2x minus 3. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए? अनकॉमन फैक्टर्स आ गए. एलसीएम हम कैसे लेते हैं? We multiply the common factors and uncommon factors. So common factors multiply uncommon factors. Common factors are x plus 2. Uncommon factors are x plus 2, x minus 2 and 2x minus 3. ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अब अगर आप यहाँ तक भी इसको काट लेते हैं तो दैट इज ओके. ठीक है, आपको फुल मार्क्स उसके मिल सकते हैं. और अगर आपने फर्दर एक्सट्रैक्ट करना है तो यू कैन डू x प्लस 2. आप इसी तरह से लिखा रहते हैं x प्लस 2, x माइनस 2 को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, जब इसको क्लोज करते हैं तो अगेन दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 और 2x minus 3. So this is the LCM of these given expression. After this we are going to solve its part number 3. Part number 3, that is very simple, easy. In the same way we will solve part 3 and 4. They both are almost same. So one part I am going to solve for you, the other you will try yourself. Okay guys, here in part 3 you can see only the two expressions are given over here. So be happy, it will be bit simpler. So in expression 1, how we are going to solve that? You can see here that 2 is outside the bracket, that is okay, we cannot make the factors of 2. But x raised to power 4 minus y raised to power 4. But we have to write here the factors of this 2 x raised to power 4 minus y raised to power 4. 2 के factors नहीं बनेंगे, इसी तरह आएगा. X raised to power 4 is the square of x square minus y raised to power 4 is the square of y square. चैप्टर नंबर 5 में आपने हर टाइप की फैक्टराइजेशन कर ली हुई है. आपने यहाँ पर जस्ट ये जज करना है कि हम कौन सी फैक्टराइजेशन यूज करेंगे. आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो टर्म्स हों और उन दोनों टर्म्स में माइनस का साइन हो और वो दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इनटू a माइनस b. ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करते हुए 2 इसी तरह लिखेंगे. a प्लस मीन, a मीन ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू है x स्क्वायर, और दूसरी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो b की वैल्यू है दैट इज y स्क्वायर. इसी तरह x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. ठीक है, अब जो प्लस वाला एक्सप्रेशन है वो तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, उसकी कोई फैक्टराइजेशन नहीं है हमारे पास. लेकिन जो माइनस वाला एक्सप्रेशन है उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b इनटू a माइनस b. उसी तरह x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू x प्लस y इनटू x माइनस y. तो इसको हम लिखेंगे x प्लस y into x minus y, because ये दोनों perfect square है और इनके बीच में minus का sign है, तो the same formula we will use here. After that we'll come towards the next expression 3 into x cube plus 2x square y minus xy square minus 2y cube. जी, इस एक्सप्रेशन में आप देखें कि हमारे पास ब्रैकेट के बाहर 3 है. 3 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, उसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते. बट यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं. हमने 5.1 में पढ़ा था कि अगर हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं तो हम उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं? हम सब टर्म्स में से कॉमन तलाश करते हैं. ठीक है, वी विल गो फॉर द कॉमन. लेकिन देखें यहाँ पर सब टर्म्स में से कोई भी ऐसा सेम नहीं है जो हम कॉमन ले सके. तो अगर 4 टर्म्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर हम क्या करते हैं? 2 टर्म्स का पेयर बना लेते हैं. ठीक है, पेयर बनाने के बाद हम क्या करते हैं? उसमें से फिर कॉमन पिक करते हैं. आप फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर बना लें, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y. ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया. ब्रैकेट के अंदर आप यहीं पे लिख लें इसको. Then here is minus
inside xy squares then minus 2y cube, ये ठीक है, और हम फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, टू टर्म्स का पेयर बना लिया। मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दूं, 3, अब ब्रैकेट के अंदर देखें एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई, फर्स्ट वाले जो हमारे पास हमने ब्रेक डाउन किया उसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यू कैन सी फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, सेकंड है 2x स्क्वायर वाई, इन दोनों में से कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्मॉलर जो होता है एक्स, स्मॉलर जो कॉमन होता है वो हम कॉमन, हम एक्स क्यूब कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर तो है ही 2 क्यू है, सॉरी एक्स है, तो हम उसको कॉमन कैसे लेंगे। अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर तो कॉमन में चला गया और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो 1x रह जाएगा, तो इट मीन्स यहाँ से हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या रह गया x, क्योंकि x क्यूब था, और यहाँ पर क्या रह गया 2x स्क्वायर कॉमन चला गया तो क्या रह गया y। ठीक है, उसके बाद है माइनस का साइन, वो हम उसी तरह से लगाएंगे। उसके बाद सेकंड वाला में एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब, अब देखिए दोनों टर्म्स के अंदर y स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे y क्यूब है, तो स्मॉलर y स्क्वायर है वो हम कॉमन ले लेंगे। इनसाइड देखिए हमारे पास क्या रह गया, अब यहाँ पर x, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2, हम उसी तरह लिखेंगे, y क्यूब में से y स्क्वायर कॉमन चला गया तो क्या रह गया y। नाउ यू कैन सी के यहाँ पर दोनों फैक्टर्स हमारे पास सेम आए हैं, तो इन दोनों को हम अगेन क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 3 ऐसे ही लिखें, वो x प्लस 2y हम कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास बाहर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है y स्क्वायर। अभी हम इन दोनों को तो फैक्टराइज नहीं कर सकते, बट वी कैन फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ओपन करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये भी ओपन होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से हमारे पास जो एक ये फैक्टर्स आ गए फर्स्ट एक्सप्रेशन के, ये सेकंड एक्सप्रेशन के, एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन फैक्टर्स पिक करने हैं। कॉमन फैक्टर्स हम यहाँ से पिक करेंगे, कॉमन हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे भी है हमारे पास x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये कॉमन आ जाएगा। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई को जब हम सिंप्लीफाई करें तो ये अगेन क्या बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह अनकॉमन फैक्टर्स ले लेंगे, यहाँ पर अनकॉमन में क्या है 2, यहाँ पर क्या है 3, वहां पर एक हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या रह गया था x प्लस 2y। ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 3 टाइम्स 6, यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं 6 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड x प्लस 2y। ठीक है, अब हम एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम में हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे कॉमन एंड अनकॉमन बोथ फैक्टर्स, उनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर उनका प्रोडक्ट लिखेंगे, दैट विल बी द एलसीएम। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आए हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अनकॉमन फैक्टर क्या है 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 6 आई कैन राइट इन द स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया x प्लस 2y। ठीक है, दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस पार्ट नंबर 3. So part 4 you will try yourself, that's also very simple, just you have to keep in mind the main steps to find the LCM. Thank you.